نمل، میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں مجھے سب جانتے ہیں کہ اب تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو۔ نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تیش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو، اور اگر تمہارا یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا ہے؟ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شاک کے کھل گیا۔ سعدی آستین فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہوگی؟ پیچھے پوچھتے ہوئے لمحے بھر کو اس کے چہرے پہ ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا، پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں بدل گیا۔ ریلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکلیں کیسی ہوں گی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہاشم بھائی۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا اور گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا سفید کرتے اور کسی ہوئی پونے والا وہ مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چھپا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثر بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس قاضی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس قاضی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینسک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا، لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کو اپنے بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس قاضی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی صورت بھی ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طاہر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس اب مسلسل منہ میں کچھ چباتا کھڑکی سے چن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے
दियों जैसी लग रही थीं। इस ज़मन में फारस गाज़ी वल तहीर गाज़ी अपनी बीवी ज़रताशा गाज़ी और सौतेले भाई वारिस गाज़ी के कत्ल के केस में मुजरिम साबित नहीं होता, इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत फारिस गाज़ी के ऊपर लगे तमाम चार्जेस मुस्तरद करके पुलिस को उनकी बाइज़्ज़त रिहाई का हुक्म जारी करती है। नीज़ इस केस से और इन इल्ज़ामात से हमेशा के लिए मुलज़म को बरी करती है। खिलजी साहब और उनके साथी वकला बेइख्तियार खड़े हुए थे। वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इस्तग़ासा के बेंच पे एक बेजारी सी थी। वो हैरान थे और बददिल भी। खामोशी मजरू हुई थी। जज साहब फैसला सुनाकर उठ के जा रहे थे। आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ऐसे में खिलजी साहब ने एकदम उसे ढूंढना चाहा तो देखा वो चुपचाप कमरा अदालत से बाहर जा रहा था। वो उसके पीछे लपके और उनका चेहरा फटते जज्बात से तमतमा रहा था। राहदारी में उन्होंने उसे जा लिया। वो सिपाहियों की मैयत में जा रहा था, मगर उसकी हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। बाजी मुबारक हो। वो उससे गले मिले, फिर अलग हुए। सदी ने बहुत मेहनत की तुम्हारे केस के लिए। तुम्हें बहुत मुबारक हो कि तुम रिहा हो गए। डबल जेopardy के कानून के तहत अब कभी इन 2 कत्लों का मुकदमा तुम पर नहीं चलाया जाएगा। अफसोस। फारिस ने हौले से सर झटका। उसके चेहरे पे सादगी सी थी। सुबह 2 पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा। अभी उनको सबक सिखाना बाकी था, लेकिन अब रिहा हो गया हूँ, ये नहीं कर सकूँगा। कुछ दिन मिल जाते तो उनकी तबीयत अच्छे से साफ करता। खिलजी साहब ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें जेल ने क्या बना दिया है फारस गाज़ी? सिवाय लड़ाई झगड़े के तुम हर चीज़ भूलते जा रहे हो। तुम्हारी ज़ुबान भी सी क्लास कैदियों वाली हो गई है। ले, सी ब्लॉक में ही तो था। उसने शाने उचकाए। खिलजी साहब ने बहुत से सख्त अल्फाज अंदर रोके। लेकिन अब तुम रिहा हो गए हो। अब तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई जल्दबाजी और बेवकूफ़ी नहीं करनी। अब ये बदमाशों वाले काम छोड़ दो। शरीफ आदमी बनकर रहो, जैसे सोसाइटी में रहा जाता है। तुम्हारे ख़ानदान ने बहुत भाग दौड़ की है तुम्हारे लिए। अब उनको अपनी तरफ से परेशान ना करना। अच्छा। वो लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। चेहरा बेतासुर सा था। अब यहाँ से निकल कर कोशिश करना कि अच्छी जॉब ढूंढो, अच्छी सी लड़की से शादी करो और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारो और अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। बाहर की दुनिया जेल जैसी नहीं है गाज़ी। उसमें तुम बात बात पे लोगों की हड्डी पसली नहीं तोड़ सकते। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को संजीदा लेना होगा। फिर रुक कर उसे देखा। कुछ पूछोगे नहीं अपने केस के बारे में? फारिस ने संजीदगी से उन्हें देखा। फीस मिल गई आपको अभी या नहीं? खिलजी साहब ने गोया बुरा मानकर उसका चेहरा देखा, जो बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी बात का कोई असर ना हो। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने यकायक कुछ महसूस किया, जैसे एक लम्हे के लिए कुछ बदला था। फारिस की निगाहों का रुख। वो उनके कंधे के पीछे किसी को देख रहा था और उसकी आंखों की सारी कैफियत बदल गई थी। खिलजी साहब ने पलट कर देखा। राहदारी में बहुत से लोग चलते जा रहे थे। उनमें वो भी थी, घुंघराले बालों वाली प्रोसिक्यूटर, जिसकी नाक में हीरे की एक लौंग दमक रही थी। वो औरतों की हमरा चलती सीध में देखती आगे जा रही थी। फारस के करीब से गुजरी तो निगाह उठे। उसकी आंखें भूरी थीं। एक सानिया को भूरी आंखें स्याह आंखों से मिली। फिर वो आगे बढ़ गई। फारस गाज़ी का चेहरा एक पल में बिल्कुल बदल गया था, जैसे वो कोई और इंसान हो। लेकिन अगले ही पल वो वापस वैसा ही हो गया। वो सर झटक कर दूसरी सिमत हो गया। खिलजी साहब ने बहुत दफ़ा इन दोनों को राहदारियों और बरामदों में एक दूसरे के पास से गुजरते देखा था। हर दफ़ा ये एक लम्हा ज़रूर आता था। उसकी रिहाई की खबर हाशिम को जब मिली तो वो कॉरिडोर में खड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने कमाल ज़ब्त से अपने कड़वे होते तासुरात छुपा लिए। वो अभी इतना मसरूफ़ था कि एकदम रिएक्ट नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसने खुद से ये अहद किया था कि अगर इसमें शादी का हाथ है तो इसे हिजाब देना होगा, और तवज्जो ज़ुमर की तरफ मबसूल कर दी थी, जो सामने से फाइल के सफ़े सरसरी अंदाज में पलटती तेज़ तेज़ उसकी तरफ आ रही थी। एक मोमर खातून और एक दुपट्टा ओढ़े नौजवान लड़की भी उसके हमरा थी। हाशिम कॉरिडोर के सिरे पे उसे मिला था। जुमर उसके सलाम का मुख्तसर जवाब देकर आगे हो ली
वो बिना कुछ कहे साथ चलने लगा। एक क्रू कट वाला नौजवान उसकी बाईं जानिब था। कोर्ट रूम तक ये वॉक खामोशी से कट जाती अगर हाशिम किसी बात के जवाब में वो नौजवान बिगड़े तासुरात से ये ना कहता, उन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं रकम अदा कर रहा हूँ, वरना कोर्ट में मुझे ये रेपिस्ट साबित कर सकते थे। साथ ही दबे दबे गुस्से से उस लड़की को देखा। हाशिम ने नज़रों से तंबीह की, मगर जुमर के कदम एकदम रुके। वो घूमकर उसके सामने आई और संजीदा मगर तीखी नज़रों से उसे देखा। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको सेटलमेंट दी, वरना अगर हम ट्रायल पे जाते तो आपको मालूम है कि क्या होता। हाशिम ने आबरू उठाकर लड़के को खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो जो पहले ही बहुत बुरे मूड में था, उखड़ा उखड़ा सा बोला, मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल पे जाने के बाद क्या होगा। अल्फाज की संजीदगी के बावजूद हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार थी। 12 साल, कम से कम 12 साल केस अदालत में चलेगा और कुछ साबित नहीं होगा। सना ने फरीद को खुद वहाँ बुलाया था। मेरे पास उनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड है और इस बात से सना इनकार नहीं करेगी कि उनका छोटा मोटा सही मगर अफेयर तो था। ना सिर्फ मैं अदालत में इस अफेयर के सबूत पेश करूँगा, बल्कि 10 ऐसे लोगों को भी लाऊंगा जिनको इस लड़की ने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा, और वो कुरान पे हाथ रख कर कहेंगे कि ये उनके साथ भी यही कर चुकी है। मैं इसको अदालत में पेशावर औरत साबित करके दिखाऊंगा। उसका ख़ानदान और मोहल्ला इसको डिसोन कर देगा। कोई इससे शादी नहीं करेगा और 12 साल बाद आखिरी पेशी पे जब ये हार जाएगी तो इसके पास ना शोहर होगा न बच्चे। इसलिए आपको वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको सेटलमेंट दी। फरीद ने फखरिया मुस्कुराकर हाशिम को देखा। सना की माँ ने लबों में मज़ीद कोई बददुआ बड़बड़ाई। सना के चेहरे का रंग बदल चुका था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और नफ़ी से सर हिला दिया। असल में होगा ये हाशिम कि जब केस ट्रायल पे जाएगा तो मैं इसे ट्रायल तक नहीं रखूँगी। पहले महीने में ही मैं पूरी स्टोरी मीडिया पे लीक कर दूँगी। शाम के अखबार की सुर्खी जितना केस 9 बजे की खबरों में आएगा। 8 और 10 बजे वाले टॉक शोज़ इस पर बात करेंगे। सना को मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाएगा, जहां ये मेल शॉविनिस्ट किस्म की ख़वातीन के साथ जुल्म की पूरी दास्तान सुनाएगी। NGOs इसके लिए वॉक करेंगी। ये इंटरनेशनल सेमिनार्स में मदऊ होगी। एंटी आर्मी तबका उसको फरीद की सना के साथ नहीं, बल्कि एक जर्नैल के बेटे की एक मजलूम लड़की के साथ ज्यादती बना देगा। और तुम्हारा, फरीद की तरफ रुख करते हुए उसने बात जारी रखी, सोशल सर्कल तुम्हें आउट कर देगा। तुम्हारा बॉस तुम्हारी रिपोर्ट पे मशकूक अल्फाज लिखेगा। कोई भी लड़की तुमसे शादी से पहले 100 दफ़ा सोचेगी, क्योंकि कातिल को लोग कबूल कर लेते हैं, बदकार को नहीं। मैं सन्ना को एक स्टार बना दूंगी और 12 साल बाद तुम केस जीत भी जाओ तो तुम बहुत कुछ हार चुके होगे, और वो हारे हुए रिश्ते तुम पे तुम्हारा 50,000 के हेयर कट और 2.5 लाख के सूट पहने खड़ा वकील वापस नहीं ला कर देगा। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो प्रोसिक्यूटर के सामने अपने मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज को रोक लेती। मुस्कुराहट मासूम थी और एक कटीली नज़र उन दोनों पर डालकर वो आगे बढ़ गई। फरीद का चेहरा अब सना से मुख्तलिफ ना था। हाशिम पे अलबत्ता कोई असर ना था। वो कंधे ज़रा से उचकाकर उसके पीछे हो लिया।